Hello students, today in this video we will talk about for loop. In the last video we have discussed about while loops. For loop and while loop both are loops but both have different type of working. Normally when we talk about while loop, it is for certain iterations and certain conditions. लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें while loop के अंदर क्या था, आपका कंडीशन भी आपने मेंशन की थी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, देन योर कंडीशन, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. क्लियर. इनिशियल वैल्यू भी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है और कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है इन केस ऑफ व्हाइल लूप, बट दैट्स नॉट द केस विद फॉर लूप. For loop normally works with sequences. Do you know what are sequences? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सीक्वेंस, जस्ट लाइक योर लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स. क्लियर. ऑल दीज आर sequences where we store group of data in a single variable. So for example, first we see the use of for loop with sequences. Let's take one example. Suppose if you have a list, we create a list here, x equals to, and we give certain elements 1 2 3 4 5. These are 5 elements in a list. Suppose you want to print this list, then what statement will you give? Simply print x. इसको सेव करेंगे हम, देन विल रन दिस कोड. जैसे आप इसे रन करेंगे तो क्या होगा, आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. द लिस्ट इज प्रिंटेड हियर, यू सी द आउटपुट. यहाँ पे लिस्ट आपकी प्रिंट हो रही है. बट व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट द एलिमेंट्स इंडिविजुअली, वन बाय वन? सो इन दिस केस we will use for loop. For this we'll take one variable. Suppose for loop यूज करने के लिए सबसे पहले हमें for कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, then one variable, then in. Suppose I have to work with this list, then I in x, then colon here. Again you have to keep in mind that you have to use colon here. Colon it is very important because अगर कॉलन आपने लगाया है तभी जो इसके आगे आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे विल बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक that will execute with this for loop. If you do not use this colon, then the following statements will not be associated with this for loop. Clear? So it's very important to use this colon. कॉलन यूज करने के बाद अब हमें प्रिंट करना है इसे. यस. नाउ सेव दिस प्रोग्राम, कंट्रोल एस, देन रन दिस कोड. नाउ सी, oh, list is printed 5 times, but what we have to do, we have to print the elements individually, 1 2 3 4 5 like this. So where's the mistake? Yes, यहाँ हमें x को प्रिंट नहीं कराना, हमें i को प्रिंट कराना है, because we have to access the elements of x. Now save this code and run. Now see the output, 1 2 3 4 5. The elements are accessed individually. Clear? Is it clear? अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा आपका? First the value of I will be 1, means the first element of x. Clear? Then it will print the value of I, that is 1. 1 will be printed. Next time the I will take the value as 2. Then it will come into this loop, print I, then 2 will be printed. Clear? Then the value of I will be 3, then 4, 5, just like this. It will keep on moving in the list till the last element.
क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपके वाइल लूप में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज किया था या इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की थी, वो हमने यहाँ पे नहीं किया है। क्लियर, इट इज अ सिंपल लूप। और ये जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं आई, फॉर आई, इसको भी आपको पहले से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आपका लूप वेरिएबल यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन, this is all done by the for loop itself. Clear? So this is a list. Same is the case with strings. Suppose इसको हम चेंज कर लेते हैं, string एक वैल्यू देते हैं, यहाँ पे सपोज हमने दिया पाइथन। क्लियर, अब हमें पाइथन ये प्रिंट कराना है, तो जैसे आपकी लिस्ट प्रिंट हुई थी उसी टाइप से आपका ये स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी ये ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, python, see the output here. First the value of I will be p, then second time the value of I will be y, then t, then h, and so on. One by one it will fetch the values of x and print it. Clear? So this is the simple flow of execution of this for loop. Next, लिस्ट के साथ आपने देख लिया, स्ट्रिंग के साथ मीन सीक्वेंसेस के साथ आप इसको इसी टाइप से इन ऑपरेटर मोस्टली हम यूज करते हैं, इसके साथ कैसे भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर, बट नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यूज, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10, देन वी हैव टू यूज द रेंज फंक्शन। उस केस में हमें रेंज फंक्शन यूज करना है। रेंज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स व्हेन वी हैव टू वर्क विद द रेंज ऑफ वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। क्लियर, अब यहाँ पे हम इसी कोड में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आई इन रेंज, रेंज इज अ कीवर्ड एंड हियर आई विल गिव अ वैल्यू सपोज 10। क्लियर, देन प्रिंट आई। अब देखो कोड सेम है आपका, हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंज नहीं किया है, सिर्फ रेंज फंक्शन मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, सीधा आउटपुट, ये 3 नहीं है, ये तो एंटर प्रेस किया इसीलिए आपका आया, आउटपुट इज 0 to 9। जब आपका 10 था, रेंज में आपने जब 10 वैल्यू पास की, एक ही आर्गुमेंट पास किया, उस केस में क्या होगा, जो आपकी वैल्यूज कैसे एग्जीक्यूट होंगी, रेंज इट विल टेक द स्टार्टिंग वैल्यू एज 0 एंड एंडिंग वैल्यू विल बी दिस 10 minus 1। 10 minus 1 मीन्स अप टू 9, मीन्स टोटल 10 वैल्यूज ये लेगा। क्लियर, ये चीज आपने ध्यान रखनी है जब हम सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो एग्जीक्यूशन आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 to 9, इन टोटल इट विल टेक 10 वैल्यूज। क्लियर, अब कैसे एग्जीक्यूशन होगी फॉर आई इन रेंज 10, इट मीन्स आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10, सॉरी आई की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, देन इट विल एंटर दिस लूप, प्रिंट आई, 0 विल बी प्रिंटेड, नेक्स्ट टाइम आई विल बी 1, then it will enter this loop, print I, then 1 will be printed, then again the value increase to 2, then 3, like this it will keep on executing, keep on increasing till this condition, this argument, this value 10। जैसे ही I की वैल्यू 10 होगी, वो 10 पे आपका प्रिंट I स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, सीधा कहाँ आ जाएगा, इससे बाहर। क्लियर, तो यहाँ पे हमने जब हम एक आर्गुमेंट देते हैं, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ वैल्यूज, और नंबर ऑफ वैल्यूज आपने कहां से लेनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू दैट वैल्यू -1। क्लियर, सिमिलरली रेंज फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद डिफरेंट वैल्यूज। सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 10, so you have to specify the starting value as well as the ending value. For example, now look at this code, we have to print the value starting from 2, then comma, then you will specify here ending value। ending value यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमने क्या डिस्कस किया था अभी, ending value
-1 वो प्रिंट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे 10 देते हैं तो वैल्यू कहाँ तक आएंगी, 9 तक। लेकिन अगर मुझे 2 to 10 प्रिंट करानी है तो हमें यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा। क्लियर? इसको आप सेव करो और इसको आप रन कीजिए। Then see, after running this code you will get this output 2 3 4 5 6. Clear? This output you will get the value starting from 2 and up to 10. First time value क्या होगी 2, then it will print the value, then 3 it will print the value, 4 5 6. When the value will become 11 it will not enter this loop, it will comes out here. Clear? अब इसमें हमें एक और रेंज में एक और आर्गुमेंट होता है आपका स्टेप वैल्यू, बट यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट इज 1. क्लियर? लेकिन अगर आप सपोज हमें स्टेप वैल्यू 3 देना है, मीन्स एवरी थर्ड वैल्यू वो प्रिंट करे आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 11, तो 3 दिया तो ये फिर इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। इसको आप सेव करो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इसमें कोई चेंज करते हैं आपको हर बार उसको सेव करना है। नाउ सी द आउटपुट, आउटपुट इज 258। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे 2 स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती है आपकी, एंडिंग वैल्यू प्रिंटिंग में इंक्लूड नहीं होती। क्लियर? 2 देन 3 4 स्किप कर दिया उसने, 5 इज प्रिंटेड, देन 6 7 स्किप कर दिया, 8 इज प्रिंटेड, देन 8 के बाद कितना 9 10 स्किप कर दिया, 11 पे आ गया, तो 11 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 11 पे आपकी कंडीशन जो वैल्यू थी वो 11 की इक्विवेलेंट हो गई, उस पर वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, उससे बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यूज क्या प्रिंट हुई आपकी 2 5 एंड 8। क्लियर? अब अगर आपको रिवर्स में वैल्यूज प्रिंट करानी है तो आपको सपोज मुझे 10 to 1 प्रिंट कराना है, 10 to 1, और अभी हम स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं यहाँ पे, स्टेप वैल्यू आपको माइनस में देनी पड़ेगी क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। इसको सेव कीजिए, सी द आउटपुट 10 9 8 7 6 5 3 4 2 1 2 अप टू 2 इट हैज प्रिंटेड। अब यहाँ पे हमारी एंडिंग वैल्यू क्या थी 1। क्लियर? तो 1 जब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो आपके 1 से पहले वैल्यू कौन सी आ रही है 2, इट मीन्स वो 2 तक जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपने 1 -1 0 नहीं ले लेना। क्लियर? तो यहाँ पे आप इससे उससे पहले वाली वैल्यू लेंगे, तो 10 से स्टार्ट हो रहा है आपका एंड अप टू 1 इट विल प्रिंट। क्लियर? ऐसे यहाँ पे भी आप स्टेप वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब यहाँ -1 दिया है, -2 -3 जो भी आपको वैल्यू देनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सपोज अगर मैं -4 यहाँ पे मेंशन करती हूँ, इसको आप सेव कीजिए और रन करो इसको, तो देखो आउटपुट क्या है आपका 10 6 2। क्लियर? हियर वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप वैल्यू। So this is a very simple loop. If you will practice this, it is very easy for you. अब सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें हम देख लेते हैं कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग 1 to 20 के बीच में सिर्फ जो इवन वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराना है। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा आपका देखो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 20 तक है 20, तो यहाँ पे हमें एंडिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी 21, सॉरी इट इज 121 20। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं देना है, 121 तक ही चाहिए हमें। और प्रिंट कराने से पहले हमें क्या चेक करना है, इफ वैल्यू इवन है या नहीं, क्योंकि इवन होगी तभी प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ वैल्यू किसके अंदर है, आई के अंदर, तो आई mod 2, यही कंडीशन होती है ना इवन और चेक करने के लिए। इज इक्वल्स टू 0, देन कॉलन। अब कॉलन हमने क्यों दिया, कॉलन मीन्स अगली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें उसके साथ चाहिए।
क्लियर। तो अगर वो ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। क्लियर। इसको आप रन करो, सेव, सी हियर 2 से लेकर 20 तक जो इवन वैल्यू थी 2, 4, 6, 8, 10 सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। क्लियर। अब इसी में आपका इस फॉर लूप की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो if you have any problem you can ask me. Thank you.